Good morning, children. I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, in the previous video, I had explained about types of plants. Okay, and we know that according to their habitat, plants can be divided into two major groups. Okay, first is terrestrial plants, second is aquatic plants. Okay, in my previous video I had also explained terrestrial plants. Okay, I hope you have watched that video. Now children, today I am going to explain aquatic plants. Aquatic plants. A-Q-U-A-T-I-C. Aquatic. Aquatic plants. A-Q-U-A. Aqua. Aqua means related to water. Aqua means related to water. Aquatic plants. Aquatic plants. Plants that live and grow in water are called aquatic plants. Plants that live or grow in water are called aquatic plants. Aquatic plants grow in ponds, lakes, rivers, streams, and oceans. There are three types of aquatic plants. They are, first is floating plants. Floating plants. Second is fixed plant. Fixed plant. Third is underwater plants. Underwater plants. Okay. So first is floating plants. Floating plants. F-L-O-A-T-I-N-G. Floating plants. Float means तैरना. Float means तैरना. Floating plants float freely in water. To float on water, these plants have following adaptive features. First, they have small and light bodies that can float. They have small and light bodies. ये जो प्लांट्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेटेड होती है, प्लस ये स्मॉल होते हैं ताकि वे इजली फ्लोट कर सके पानी में. ओके. सम प्लांट्स हैव स्पंजी एंड एयर फिल्ड स्टेम्स. कुछ प्लांट्स में स्टेम्स में हवा भरी होती है. ओके. और कुछ प्लांट्स जो है वो स्पंज की तरह होते हैं. एग्जाम्पल्स आर floating plants. Water hyacinth. H-Y-A-C-I-N-T-H. Water hyacinth. Wolffia and duckweed. Wolffia and duckweed. What are the examples of floating plants? Water hyacinth, Wolffia and duckweed. Okay. Next is fixed plants. Fixed plants. F-I-X-E-D. Fixed. Fixed means एक जगह स्थिर, fixed रहना. These plants have roots that are fixed to the bottom of ponds, but most of the vegetation is above water. These plants have roots. इन plants में roots होते हैं जो ponds या water bodies के bottom में fixed होते हैं, but most of the plants का जो part होता है वो above water होता है. Okay. They have long, hollow, flexible stems. They have long, hollow and flexible stems. इनके जो stems होते हैं वो लंबे,
खोखले, हॉलो मीन्स खोखला, एंड फ्लेक्सिबल मीन्स जो इजी से इधर उधर मुड़ जाए, ऐसे होते हैं। विथ ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, द अपर सरफेस ऑफ leaves have a waxy coating. The upper surface of leaves have a waxy coating. अपर सरफेस होती है लीव्स में, उसमें वैक्सी कोटिंग मीन्स वो तेली चिकना होता है ताकि उस पर वाटर ठहर ना सके। एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर लिली आर examples of fixed plants are water lily and lotus. Water lily and lotus, LOTUS, lotus. Okay, next is underwater plants. Underwater plants, वे प्लांट्स जो पूरी तरह पानी में रहते हैं उन्हें हम अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। ओके, these plants remain completely submerged in water. ये प्लांट्स पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए रहते। They have narrow and thin leaves and flexible stems. इनके जो leaves होते हैं वो narrow पतले होते हैं और इनकी जो stems होती हैं वो flexible होती हैं। They breathe through their body surface and do not have stomata. STOMATA, meta, stomata. Most of the plants में उनकी जो leaves होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ताकि वो ब्रीदिंग प्रोसेस को कर सके। ओके, बट इस प्लांट में जो है के लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता, ये अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीदिंग प्रोसेस को करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ underwater plants are tap grass and hydrilla. Tap grass and hydrilla, HYDRILLA. Hydrilla, HYDRILLA, hydrilla. Okay, now apart from terrestrial plants and aquatic plants, there are other types of plants. There are also other types of plants. Okay, non-green plants and insectivorous plants. Non-green plants and insectivorous plants, ऐसे plants जो हरे नहीं होते एंड ऐसे plants जो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ओके, so first is non-green plants. Non-green plants, some plants like mushroom and molds do not have the green color pigment called chlorophyll. These plants do not have the green color pigment called chlorophyll, 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 chlorophyll. इन प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कह रहे हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब जब इनके में क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे ग्रो ऑन डेड, ये मृत या डिकाइंग मतलब सड़े हुए वस्तुओं पर या पेड़ों पर लगते हैं। ओके, आपने मशरूम का पेड़ और ऐसा देखा होगा, मोल्ड्स, ये जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, INSECTIVOROUS
Tivorous. Insectivorous plants. Insectivorous plants. There are some plants that eat insects. ऐसे plants जो insects को खाते हैं. Okay. These types of plants trap insect with the help of their specially designed leaves. ये जो plants होते हैं वो insect को eat करते हैं. ये देखिए, ये pitcher plant है. इसके जो leaves हैं ये specially designed होते हैं. जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है तो ये जो ऊपर में जो इसकी पत्तियाँ होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं. ओके, ठीक है. तो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं. दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स दैट दे ट्रैप. वे क्या करते हैं, जिन भी इंसेक्ट्स को उन्होंने पकड़ा है उनसे वो न्यूट्रिएंट ड्राइव करते हैं, मतलब लेते हैं, और वे अपना भोजन इस तरीके से कीड़ों के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में ग्रहण करते हैं. सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक स्पेशली डिजाइंड लीव्स होते हैं जिनकी सहायता से वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन इंसेक्ट्स को से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ओके. Pitcher plants and Venus flytrap are the examples of insectivorous plants. Pitcher plants and Venus flytraps are the examples of insectivorous plants. Okay children, now we are going to learn uses of plants. Uses of plants. Plants are useful for ह्यूमन बींग्स इन न्यूमरस वेज. प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है. बहुत तरीके से हम प्लांट्स का उपयोग करते हैं. सो फर्स्ट, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. हमें प्लांट्स से भोजन मिलता है. हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं, स्पाइसेस, ऑयल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स. वी गेट फाइबर्स. हमें प्लांट्स से रेशे फाइबर्स मिलते हैं जैसे कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स, और इन्हें यूज़ करके हम कपड़े बनाते हैं. स्टेम ऑफ बैम्बू are used to make paper, baskets, huts, furniture, etc. स्टेम ऑफ बैम्बू ट्री के जो स्टेम्स होते हैं उससे पेपर, बास्केट, हर्ट्स और फर्नीचर बनाए जाते हैं. Some plants are used to make medicine such as तुलसी, नीम, सिंचोना, etc. कुछ प्लांट्स जो हैं उनका यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं, जैसे तुलसी, नीम, सिंचोना, क्लोव एक्सेट्रा. ओके. शीशम, शाल एंड टीक प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा. कुछ प्लांट्स की जो लकड़ियाँ हैं, वुड्स हैं, उनको यूज़ करके फर्नीचर, डोर एंड विंडोज़ बनाए जाते हैं. क्योंकि शीशम, शाल, टीक के जो प्लांट्स होते हैं इनके जो वुड होते हैं वो काफ़ी ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जिसके कारण इनसे फर्नीचर्स, डोर्स, विंडोज़ आदि बनाए जाते हैं. सम प्लांट्स गिव अस गम एंड रबर ऑल्सो. ओके. कुछ प्लांट्स जो है वो हमें गम देते हैं, गोंद देते हैं, जिससे हम गोंद और रबर बनाते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो दे आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नो दैट प्लांट गिव अस ऑक्सीजन. प्लांट गिव अस ऑक्सीजन. प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसे हम
ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू।